آج کی تھوڑی نہ ہے بیٹی بچاؤ کی صدا، یہ رسول اللہ کا چھیڑا ہوا ابھیان ہے۔ سبحان اللہ سبحان رسول اللہ۔ اللہ کا چھیڑا ہوا ابھیان ہے۔ اور حالات کو دیکھتے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا، میرے اللہ میری جھولی بھلے خالی رکھنا، میرے معبود میرے کردار مثالی رکھنا، وقت تخلیق میری مٹی نے مانگی ہے دعا، رنگ جیسا ہو پر ایمان بلالی رکھنا، سبحان اللہ رنگ سبحان جیسا ہو پر اللہ۔ ایمان بلالی رکھنا۔ اور ایک شعر علماء کرام کے حوالے سے، سرکار سرکاہی سے محبت رکھتے ہیں تو ذرا بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ سرکار سرکاہی سے عشق کرتے ہیں۔ یہ شعر میں بالخصوص مولانا سراج صاحب کے لیے، عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، ان سے جتنی محبت ہوگی آواز بلند ہوگی، عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دیتا ہے پیار انہیں پیار دینا چاہیے، عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، جو دیتا ہے پیار انہیں پیار دینا چاہیے، اور جو بھی سرکار سرکاہی کا دشمن ہے دوستو، ان کو بیچ راستے میں مار دینا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا شعر سن کر کے تو اس انداز کے ساتھ آپ لوگ بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم لوگ مدوہاں میں نہیں، سرکار سرکاہی کے اس گنبد کے قریب بیٹھ کر کے سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ اب میں شروع ہوتا ہوں، دو جملہ ہے، اسی جملہ پہ میری تقریر ہے۔ ایک ہے آہ، کیا ہے؟ اور ایک ہے واہ۔ اب آپ سے پوچھتے ہیں اس دو جملہ میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ بولیے، نہیں بولیے گا تو کہا ہم کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ مولانا بولتے چلا جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ تو میلاد شریف میں ایسے منہ بنا کر بیٹھتے ہیں کہ منہ دیکھ لیجئے تو تقریر بھلا جائیے، ہے نا؟ تو منہ بنا کر یہاں مت بیٹھیے، مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی کی سنت جو اپناتا ہے وہی نبی کا سچا عاشق کہلاتا ہے۔ دو جملہ ہے، ایک جملہ آ ہے اور دوسرا ہے واہ۔ اس میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے بولیے۔ واہ۔ سب بچہ سب بولا ہے، آپ لوگ کو ٹینشن ہے؟ میلاد میں دو آدمی نہیں بولتا ہے۔ کون نہیں بولتا ہے جانتے ہیں؟ جس کے منہ میں گھٹکا ہو اور دل میں کھٹکا ہو وہی سبحان اللہ نہیں بولتا، نہیں تو ٹینشن میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے وہی سبحان اللہ نہیں بولتا۔ اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ تقریر سنیں گے جو تقریر میں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک جملہ ہے واہ اور ایک ہے آہ۔ بچہ سے پوچھیں گے بتاؤ اس دونوں میں تمہیں کون پسند ہے؟ بچہ کہے گا واہ۔ جوان سے پوچھیں گے کہے گا واہ۔ امام سے پوچھیں گے کہے گا واہ۔ جس سے بھی پوچھیں گے سب کی زبان پر یہی جملہ ہوگا واہ۔ کیوں؟ اس لیے پیٹ میں درد ہو تو آواز نکلتی ہے آہ، سر میں درد ہو آواز نکلتی ہے آہ، کسی سے ٹینشن ہو چہرہ دیکھ کر آہ، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی یہ مولانا واہ آ میں ہم کو پھنسا رہا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ واہ اور آ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اپنی تقریر کا آغاز میں اعلیٰ حضرت کے شعر سے کرتا ہوں، چونکہ جس گفتگو میں اعلیٰ حضرت کا شعر برکت کی نیت سے نہیں پڑھا جائے، میری سوچ اور میری فکر میں کہ بولنے والوں کی گفتگو میں چاشنی نہیں آتی، سبحان بولنے اللہ والوں کی سبحان تقریر اللہ۔ میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اب میں کہا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے میرے سرکار اعلیٰ حضرت، جب پریشانی آتی ہے تو انسان آہ کہتا ہے، مجبوری آتی ہے انسان آہ کہتا ہے، درد ہوتا ہے انسان آہ کہتا ہے، کوئی دقت ہوتی ہے انسان آہ کہتا ہے، جب دقتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان آہ کہتا ہے، اگر زخم ہو جائے درد کرنے لگے آہ کا جملہ نکلتا ہے۔ لیکن اے میرے سرکار اعلیٰ حضرت، سنیوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا مہینہ پایا، اور جیسے ہی 12ویں والے سرکار کا مہینہ آیا، مصطفیٰ کی محفل جب مصطفیٰ کی ولادت کا جب مہینہ قریب آیا، سنیوں نے جب مصطفیٰ کی آمد کا چاند دیکھا، جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نکلا، اب سنیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے، سنی مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچے بھی مسکرا رہے ہیں، جوان بھی مسکرا رہے ہیں، عالم بھی مسکرا رہے ہیں، ان پڑھ جاہل بھی مسکرا رہے ہیں، اور کوئی مدرسہ کو سجا رہا ہے، کوئی مسجد کو سجا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کو سجا رہا ہے، کوئی اپنی بستی کو سجا رہا ہے، کوئی اپنی دکان کو سجا رہا ہے، کوئی قبرستان کو سجا رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ
ये सजाने का माना मतलब क्या है जरा बता दे। तो अहले इल्म तरफ करके कहने लगे मुस्तफा की आमद का महीना आ गया है, नबी की पैदाइश का महीना आ गया है। सुन्नी मकान को सजा रहा है, सुन्नी दुकान को सजा रहा है, बरेली अपनी मस्जिद को सजा रहा है, अपने मोहल्ला को सजा रहा है। जब सबने अपनी बस्ती को सजा लिया और बच्चा भी वाह कह रहा है, जवान भी वाह कह रहा है, खुशी में मचल करके वाह कह रहा है, हर एक की जबान पे वाह का जुमला रहा है। अब मैंने कहा हे मेरे सरकार आला हज़रत, मुस्तफा की विलादत का महीना आया है, सब खुशी में वाह बोल रहा है, सब खुशी में मचल कर वाह कह रहा है। हे मेरे सरकार आला हज़रत, आप मुस्तफा की विलादत में क्या कहते हैं, मुस्तफा की शान में क्या कहते हैं? तो सरकार आला हज़रत ने तमाम गुलामों की जबान को अपनी जबान में सिमट करके आलम इस्लाम को पैगाम दिया कि नबी की विलादत के महीना को हल्के में मत लेना। बच्चा ने वाह कहा है, जवान ने वाह कहा है, सबने वाह कहा है। मैंने कहा आला हज़रत सरकार आप क्या कहते हैं? तो आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब मैंने कहा सरकार आपने तो नबी की विलादत की तारीफ कर दिया, लेकिन 11वीं का भी महीना आता है, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी का भी महीना आता है, सरकार गौसे आजम के न्याज की भी तारीख आती है, सरकार गौसे आजम के फातिहा की भी तारीख आती है। जो खुशी रबीउल शरीफ के मौके में मिलती है, जो बहारें रबीउल शरीफ में देखने को मिलती है, वही बहारें सुन्नी 11वीं में भी मनाते हैं। आपने नबी की शान में कहा वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा। अब सरकारे गौसे आजम का महीना आ गया है, आप क्या कहते हैं? 11वीं का महीना आ गया है। तो सरकारे आला हज़रत ने कहा वो तो बड़े पीर है, रोशन जमीन है, पीरों के पीर है, तमाम पीरों के ताजदार है, तमाम पीरों के सरदार है। सरकारे गौसे आजम की शान में आप क्या कह रहे हैं? 11वीं का महीना आ गया है। ए मेरे सरकार आप क्या कहते हैं? तो आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है, खोज है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए मौला उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, और जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं टेंशन में है, वो लोग को जगह नहीं मिल रही है कि वो लोग खड़ा, इधर भी तो जगह है खाली, आप लोग आकर के बैठ जाइएगा। थोड़ा सा सरकार मैंने इसलिए बोला है कि कुछ लोग सोने के कतार में आ गए थे। कहीं कहीं हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग बेदार हैं, कहते हैं आप लोग बेदार हैं। एक जगह मैंने सही कहा आप लोग बेदार हैं, जो बूढ़ा आदमी बेंच पे बैठ जाए। अब बोलता मौलाना साहब चुपचाप तकरीर कीजिए। क्या कहा? सही देखिए सुभान अल्लाह। देखिए हमारे शमसुद्दौला भाई भी आ गए, जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है। और जब मैंने कहा कि आप लोग बेदार हैं, तो एक ज़ईफ आदमी खड़ा होकर बोलता है मौलाना साहब आप ही ठीक है, हम लोग बेकार हैं। हालांकि कहा क्या गया था? बेदार है, यानी जगे हुए हैं, होश में हैं, लेकिन वो उल्टा सुन लिया। अगर आप भी उल्टा सुन लीजिएगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बारगाह में एक गुलाम जाकर के आवाज दिया, ए मेरे सरकार गरीब भी मुस्तफा की महफिल सजाते हैं, अमीर भी मुस्तफा की महफिल सजाते हैं, लाचार भी मुस्तफा की महफिल सजाते हैं, लेकिन सजाने वाला कोई 50,000 को बुलाता है, कोई 25,000 को बुलाता है, कोई 1,000 को बुलाता है, लेकिन जो लाचार होता है, जो गरीब होता है, 10, 20, 50 आदमी से अपने घर की जीनत बना लेता है, अपने घर की खुशहाली में मेहमानों को बुला करके खुशियां बांट लेता है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आप क्या फरमाते हैं? तो सरकार अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं वो लोग जिसने 50,000 को बुलाया है, मेरा मुस्तफा उसकी तादाद को नहीं देखते हैं। किसी ने अगर हजारों हजार लोगों को बुलाया है तो मदीने के सरकार उसकी तादाद को नहीं देखते हैं, उसकी जमात को नहीं देखते हैं। तब गुलामों ने कहा आप बड़ा खुलासा कर दे। तो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मदीने के सरकार ने फरमाया था कि अगर मिलाद सजाने वाला अगर उसके पास पैसा नहीं है, 5 आदमी को बुला करके अपना दरवाजा को फ्रेश करते हुए अपने दरवाजे पे इमाम को बुला करके नबी की महफिल को सजा देता है, 5 आदमी को खाना खिला करके उस 5 में एक गरीब को बुलाता है, 4 अमीर को बुलाता है। तो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अगर 4 अमीर आता है, 1
अमीर के दस्तरखान पर अगर कोई गरीब खाना तनावुल कर लेता है, उसके चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट आती है, मदीने के सरकार फरमाते हैं हम उसके प्रोग्राम को कबूल करवा लेते हैं। सुभान अल्लाह। दौलत की जरूरत नहीं है, मानो सर की जरूरत नहीं है। मेरे नबी किसी के दौलत को नहीं देखते हैं, देखते हैं तो उसके दिल को देखते हैं। अब आपके दिल में क्या है? अगर खाने का शौक है अलग है, घूमने का शौक है वो अलग रख दीजिएगा, यानी भाई को दिखाने की ख्वाहिश है उसको अलग रख दीजिएगा। लेकिन सुन्नी ये सोच कर मिलाद में अगर कोई आया हो कि या रसूल अल्लाह, हमने सुना है जब आपकी महफिल में कोई आता है नियत अच्छी होती है, इरादा अच्छा होता है, सवाब की ख्वाहिश होती है, सवाब की नियत होती है, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मिलाद में बैठने का सवाब अलग मिलता है, बोलने का सवाब अलग मिलता है। और अगर दिल में अरमान हो कि मैंने सुना है अफजल हुसैन साहब अपने बेटे की शादी के मौके पर नबी की महफिल को सजा लिया है, आमना के लाल की महफिल को सजा लिया है, मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, मिलाद में बैठने से तबीयत ठीक हो जाती है, तो पूछे मौलाना सिराज साहब से, उलमाए दीन फरमाते हैं कि जिस जगह नबी की महफिल सजाई जाए, अगर कोई मुराद लेकर के आता है, कोई नियत साफ करके आता है, जिसकी जो नियत होती है शर्त है अच्छी नियत हो, तो अल्लाह उसकी नियत को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर हो गई, ये तकरीर हो गई ना। अब सलातो सलाम पढ़ दिया जाए तो ना आप लोग हूँ बोलिएगा ना हाँ बोलिएगा, तो हम क्या बोलेंगे? सुनाइए सुनाइए। पीछे वाले जितने लोग हैं वो लोग कह रहे हैं खत्म कर दीजिए, नहीं आधा घंटा चलने दीजिए। हाँ अब हम लोग तो डेली बोलते ही है, वो बोल के आए हैं, अब बोल रहे हैं, फिर यहाँ से जाएंगे तो निकाह पढ़ाना है। अब एक शेर हम पढ़ देते हैं, पढ़े? इरशाद, इरशाद। मुड़ी हिला लेकिन सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिलाना ये हम लोग की फितरत बन गई है, समझ रहे ना। लेकिन सर हिला, अच्छे बात बताइए, हम कहते हैं या कोई भी आलिम उलमा कहता है हाथ उठाइए, तो हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं। तो उनसे मैं कहता हूँ कि आप हाथ का पावर, हाथ की हकीकत अगर जानना है तो किसी दूल्हे से जाकर पूछिए। पाँव क्या है? अल्लाह की नेमत इतनी बड़ी नेमत है, इसकी हकीकत क्या है आप किसी लंगड़े से जाकर पूछिए, वो यही कहेगा काश मेरा भी पाँव होता तो हम भी अपने पाँव पे चल करके अपने भाइयों से मुलाकात करता, हम भी अपने पाँव से चल करके महफिल रसूल में जाता। ये तो अलग बात है, मेरे नबी ने फरमाया था कुल आलिमन, जिसका माना होता है तुम आलिम बन जाओ। लेकिन फिर मेरे नबी ने सोचा कि यार सब तो मौलाना बनेगा नहीं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। फिर मेरे नबी ने फौरन कहा औ मुताल्लिमन, यानी तुम तालिब इल्म बन जाओ। फिर मेरे नबी ने सोचा सब तो मदरसा में जाएगा नहीं, सब तो मदरसा में पढ़ने के लिए जाएगा नहीं, सब तो मदरसा का स्टूडेंट बनेगा नहीं, तो फिर हमारी बात अधूरी रह जाएगी। फिर मेरे नबी ने तीसरी हदीस पेश की, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस मेरे नबी ने फरमाया औ मुस्तमीअन, यानी तुम समाअत करने वाला बन जाओ। समाअत से मुराद ये है मिला, यानी दीन की बातें सुनने वाला बन जाओ। तो आप दीन की बात सुन रहे हैं, अपने मुकद्दर पे इतरा रहे हैं, जरा पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बात मैं रखूंगा, उस दो बात में 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे वो आप बाद में सोच लीजिएगा। जगह कम पड़ी है, उधर जगह खाली है, उधर भी 2-4-50 को कुर्सी लाके लगा दीजिए, उधर भी लोग बैठ जाए, उन्होंने खाली खातिर है। और अफजल हुसैन साहब किधर गए? अच्छा वहाँ के हाथ मिला के चल गए, वही थे। सुभान अल्लाह। चलिए वो हाथ को मिला दिए। अब नाते पाक का 2-3 शेर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहीं आवाज लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम पहले पढ़ देते हैं जी। अब कौन सा कलाम पढ़े ना समझ में आ रहा है, आप लोग कहीं सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा तो याद आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। कुछ छिड़किन वाली बात नहीं है कि बेचारा के डायरी भुला गया तो उल्टा सीधा बोलने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम पढ़ते हैं, शेर सुनिए। कि जानते हैं